पुलवामा रे जो बड़ धरणर आतंकी हमला होइछि सेतरे 20 जवान शहीद होइछन्ति उरी ठारू मध्य बड़ हमला होइछि एवं जहा कि रहिछि आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद एथिपाई गोटे वीडियो जारी करछि निजको मध्य दायी करछि जैसे आतंकी संगठन तो बड़ धरणर एई घटना वर्तमान समय घटी जहा कि पुलवामा रे घटना घटी वर्तमान समय 20 जवान एथरे शहीद होइछन्ति एवं 45 रु अधिक जवान आहत होइछन्ति सेथि मध्यरे प्राय 18 जनक अवस्था गुरुतर रही जहाँ वर्तमान समय सूचना आसुछि जहाँ वर्तमान आम जहाँ देखुछु वर्तमान समय जहाँ खबर आसी पहुँचुछि तेबे एही हमला पाई निजको दायी करछि जैसे आतंकवादी संगठन। There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, no, it's not confirmed as yet. It's a matter of investigation. All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Can you give us the number of casualties and injured? At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. So, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind of attack it was? As it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, Mr. Pani, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you, sir. Thank you very much. So he was सेना अधिकारी जहाँ तक प्रतिक्रिया रखुले जे 20 जन सीआरपीएफ जवान ए शहीद होती वर्तमान समय जहाँ कि जहाँ जो गाड़ी रही जो जवान मानकर सेना गाड़ी जो रही से गाड़ी रे ही किसी विस्फोरण बा विस्फोरक सामग्री से रखी जहाँ वर्तमान समय ये घटना सामना को आसी जहाँ फल कि यह भाव में घटना घटला आतंकी हमला किसी एभली उपाय से करते जहाँ फल कि 20 जन जवान शहीद होती यह व्यतीत जहाँ कि आहत होती किसी जवान से हॉस्पिटल में भर्ती करा जायछि वर्तमान समय से चिकित्सा चलछि तेबे जैसे मोहम्मद यहाँ पर घटना पर से तार गोटे वीडियो जारी करिछि जोथरे कि सेमाने एही हमला करैछन्ति बोली कहिछन्ति आदिल मोहम्मद जे कि रहिछि तांकर मुख्य जैसे मोहम्मद जे संगठन आतंकी संगठन मुख्य रहिछि सीए ए नहीं जहाँ कि गोटे वीडियो जारी करछन्ति विस्तृत भाव में घटना नहीं सूचना देछन्ति तेबे बड़ धरणर आतंकी हमला उरी आक्रमण जहाँ होइथिला एवं सेही उरी आक्रमण पर वर्तमान समय यह गोटे बड़ धरणर आतंकी हमला जहाँ कि उरी पर पुलवामा रे यह होउछि गोटे बड़ हमला एथिरे जो गाड़ी रही जवान मानक गाड़ी से ही विस्फोरक खंजा जाइथिबा वर्तमान समय जहाँ प्राथमिक भाव में सूचना आसुछि किंतु आगो को जाइए किसी स्पष्ट वर्तमान समय होई नहीं कारण हठात ए घटना घटीगला एवं एहा द्वारा जो विस्फोरण प्रभाव में अन्य गाड़ी गुड़िक जहाँ कि प्रभावित होइछि आ किछि जवान जो माने कि आहत होइछन्ति 45 जन रु अधिक जवान आहत होइछन्ति ता मध्यरु जहाँ सूचना आछि 18 जन पाखापाखि जवान गुरुतर रहिछन्ति तांकर चिकित्सा चलछि तेबे गोटे दुखद खबर जे 20 जवान शहीद होइछन्ति आ
जहाँकि जैसे आतंकी संगठन एथिपाई निजकू दायी करछि। आदिल अहमद जी की आक्रमण करथिला एक कथा से गोटे वीडियो जारी करी वीडियो टेप्रे एक कथा से कहिछि। तो वर्तमान समय यह हेउछि गोटे बड़ धरणर विस्फोरण और आईईडी विस्फोरण करा जायथिला जहाँ फल कि यही घटना घटी एवं एते बड़ धरणर यही दुर्घटना बा एते बड़ धरणर विस्फोरण होइथिला। तेबे श्रीनगर जम्मू जहाँ रही हाईवे से पाखरे ही यही घटना घटी। तेबे 40 जमीक आम कहूँ 45 जन पाखापाखि एथिरे जवान आहत होइछन्ति समानकर चिकित्सा वर्तमान समय चली। तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे निकट में घटी घटना एवं जहाँकि से पाखरे मध्य रही जहाँ अन्य गाड़ी गुड़िक रही आईईडी विस्फोरण द्वारा भी से गुड़िक प्रभावित होती। तेज अनेक जवान को स्थिति गंभीर रही। वर्तमान समय गोटे दुखद खबर जे बड़ धरणर जो आतंकी हमला जो थे कि 20 जन जवान ए शहीद होती। तो जहाँ जम्मू और श्रीनगर जो मेन रास्ता रही जहाँ कि एनएच रही से निकट में ही घटी घटना एवं बड़ जिन हूँ कि आखपाखे गाड़ी रही। तो अनेक समय बेले बेले जहाँ कि भारतीय सेना जितेबाला अनुप्रवेश करुँच आतंकी संगठन भारतीय सेना जवाब दौर आतंकवादी मानू। तेबे सेमाने आज जो भली गोटे आतंकी हमला करिसेंती जो थे कि 20 जन सीआरपीएफ जवान एथरे शहीद होइछंती। तो वर्तमान समय यह निहाती भाव में गोटे दुखद खबर। सबसे पहले उन जवानों की शहादत को मैं सलाम करता हूं जो जम्मू कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ काम कर रहे हैं। आज भी जिस प्रकार से ये पूरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रही होगी कि सीआरपीएफ की जो कॉन्वॉय है वहाँ से जा रही है, तो लेकिन इसकी जिम्मेवारी जैसे जैश ने ली है तो पहले से ही ये जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा हो या दूसरी एजेंसी जो भी यहाँ पर काम कर रही हैं, काफ़ी इनकी कमर मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई है। लेकिन ये युद्ध है, बीच में कहीं युद्ध में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी हमला हो जाता है, ये चिंताजनक है। इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा आगे से इस प्रकार का ना हो, और जो भी लोगों ने इस पर किया है उनको घर से निकाल करके मौत के घाट उतारा जाएगा, ये तय है। तेज जहाँ आपण मैंने प्रतिक्रिया शुणुते वर्तमान समय तेज जहाँ जो घटना पर वर्तमान समय जमीक पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री जे रही ममता बनर्जी से ट्वीट कर समवेदना जन दुख प्रकाश कर सैल्यूट कर जवान मानकर साहसिकता को लेकिन जो मैंने आहत होती से शीघ्र भल हे से नहीं से आशु आरोग्य कामना कर भगवान को निकट प्रार्थना कर। वर्तमान समय जहाँ ट्वीट कर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तेज विभिन्न महलर प्रतिक्रिया प्रकाश पाँच देखिपे आप चित्र में जे किभली भाव में जेहेतु एनएच रही से गाड़ी गुड़िक रही यही समय ही जो सेना जो गाड़ी रही से आईईडी खजा जाए विस्फोरण घटा जाए जहाँ वर्तमान समय प्राथमिक भाव में उसके 10 दिन पहले एक औरत थी जिसको कि दरिंदगी से इन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर में मारा था। ये सब दर्शाता है कि जो मिलिटेंट अभी बौखला गए हैं और उनके जो आका पार बैठे हुए हैं उन्होंने हुक्म दिए हैं कि आप कुछ करो। और आजकल जो मौसम चल रहा है ये बर्फ का मौसम है, और जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट वाला एनकाउंटर या कुछ नहीं था, उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया था। मौसम इतना खराब है, बर्फ के नीचे छिपा के, और जब उनकी कॉन्वॉय निकली है तो उसमें किया है। तो मैं तो कहूँगा ये एक बहुत ही शर्मनाक जो इंसिडेंट उन्होंने किया है। जो हमारे शहीद हुए हैं, जो घायल हुए हैं, मैं उनके परिवारों को
तो बर्तमान समय जहाँ प्रतिक्रिया आप शुणुते विभिन्न जी रही वरिष्ठ सेना अधिकारी हूँ पूर्वतन सेना अधिकारी से जो प्रतिक्रिया देते कहबार जे सेमाने एते प्लानिंग सहित घटना घटे कारण वर्तमान समय प्रबल तुषारपात होमती उत्तर भारत में शीतलहरी जारी रही कश्मीर में जो भाव में बरफ वर्षा होता सत्वे भी सेमाने आईडी विस्फोरण कर बरफ तले से आईडी को लुचेकी रखी तो ये अनुमान कर किभली भाव में घटना घटे शब्दों में निंदा करते हैं। वीरगति प्राप्त हुए 18 हमारे सेना के जवानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति हमारी दिली संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। घायल हुए हमारे जवानों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं और जल्दी से जल्दी वो कुशल हों और दोबारा देश सेवा के मार्ग पर वापस लौटें, ऐसा परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। मोदी सरकार में ये 17वां बड़ा उग्रवादी हमला है पिछले 5 साल में। पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा अटैक, सुंजवान आर्मी कैंप अटैक और न जाने कितने और छोटे और बड़े हमले मोदी सरकार की नाक के नीचे आए दिन हमारे सैनिकों, हमारे जवानों के ऊपर होते हैं। मोदी सरकार में ही शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का सर काटकर पाकिस्तानी उग्रवादी और वहां की सेना के लोग ले गए, पर मोदी जी चुप रहे। 5000 से अधिक बार जम्मू कश्मीर पर हमारी सीमा का उल्लंघन दिन दहाड़े पाकिस्तान की सेना के द्वारा किया गया, पर मोदी जी चुप रहे। 448 से अधिक जवान अकेले जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए। 280 निर्दोष नागरिक मारे गए। पाकिस्तान द्वारा निर्यातित उग्रवादी हमलों के अंदर, पर मोदी सरकार चुप रही। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे और शेखी तो बघारती है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलि की वेदी पर कुर्बान कर दिया है। आए दिन जब हमारे जवानों के शव वीरगति प्राप्त कर भारत माता का झंडा उठाकर पाकिस्तान के उग्रवादियों से लड़कर पाकिस्तान की सेना के कुख्यात घात लगाकर हमलों से लड़कर वापस आते हैं, तो देश का राजनीतिक नेतृत्व वो केवल चुप देखता रहता है। सच्चाई ये भी है कि बार बार इन होते उग्रवादी हमलों का न मोदी सरकार नियंत्रण कर पाई है, न पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाकर कोई जवाब दे पाई है। उरी के बाद यह दूसरा बड़ा उग्रवादी हमला जिसमें 18 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 35 जवान आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी फुर्सत भी नहीं कि वो 2 शब्द संवेदना के कह पाएं। देश जवाब मांगता है। देश जवाब मांगता है सेना के रणबांकुरों की कुर्बानी का। देश जवान मांगता है आए दिन पाकिस्तान से आयातित उग्रवाद से लड़ने के बारे में। देश जवाब मांगता है देश की सीमा की उल्लंघन का पाकिस्तान के द्वारा। देश जवाब मांगता है पाकिस्तान के द्वारा हमारी सेना के जवानों के सर काटने का। और देश जवाब मांगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मोदी सरकार द्वारा घोर समझौते का। मोदी जी, देश की ओर से, देशवासियों की ओर से, 135 करोड़ भारतीयों की ओर से हम पूछना चाहते हैं, वो 56 इंच का सीना इस उग्रवाद को माकूल जवाब देगा कब? टू पुट इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, in a cowardly attack by terrorists today, 18 CRPF Jawans have been martyred. 35 of our Jawans are fighting between life and death on account of having been injured in this dastardly attack. This is the 18th major terror attack under the very nose of Modi government, which came to power on the plank of protecting national security.
Pampora terror attack, Uri terror attack, Pathankot terror attack, Gurdaspur terror attack, Amarnath Yatra terror attack, Sunjwan army camp terror attack, and the list is endless. Every day, our Jawans are martyred on the border facing terrorists coming from Pakistan or skirmishes and attacks unprovoked that happen from the Pakistan army. Yet our government remains a mute spectator. 5,000 is the number of times during which ceasefire violations have taken place unprovoked by Pakistani army, yet Modi ji remains mum. 448 Jawans have been martyred in Jammu and Kashmir alone. 280 civilians have died in Pak-sponsored terror attacks. But where is Modi government defending the borders of our nation? Pakistan cuts the heads of Shaheed Mandeep and Shaheed Narinder Singh, but those who promised 10 heads in place of one remain absolutely silent. The truth today is that India is facing unprovoked terror attacks from Pak-sponsored terrorists. Yet, unfortunately, Prime Minister has more faith in the dreaded ISI, which is the benefactor, protector and harbinger of terrorism, for he invites them to investigate the Pathankot air base attack. तो वर्तमान समय जहाँ की बड़ हमला आतंकी हमला जहाँ कह जाउछि कारण पूर्व जब देखा पठानकोट हो अमरनाथ घटना हो बा उरी अटैक हो तापर पुलवामा तेज सब बड़ कथा होछि प्रबल बरफपात बा प्रबल तुषारपात जोगु से रास्ता 7 दिन धरी बंद रही है गत काली से रास्ता रु बरफ हटा जाइथिला रास्ता क्लियर होता आज ये घटना घटी जहाँ की जैसे आतंकी संगठन निजको एथिपाई दायी करछि। वर्तमान समय जी रही गृहमंत्री राजनाथ सिंह से आलोचना करिसेंती सीआरपीएफ डीजी सहित आलोचना करछंती तेबे जवान को बस सहित विस्फोरक खंजा जाइथिबा जो कार विस्फोरक खंजा जाइथिला सेही कार टी जवान जो रही गाड़ी ताकू धक्का देता जहाँ फल कि यही घटना घटिला। तो वर्तमान समय गोटे बड़ आतंकी हमला जो विभिन्न आतंकी हमला रही है गोटे बड़ धरणर आतंकी हमला आईईडी ब्लास्ट करा आईईडी विस्फोरक रही जहाँ फल कि 20 जन जवान शहीद होइछन्ति। तो वर्तमान समय जहाँ कि आउ गोटे पटे राजनीति आरंभ हो जाइए जेमती कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता जे सूर्यवाला थे जहाँ से कहते जे घटना को लेकिन से दुख प्रकाश कर जो मैंने शहीद होती एसत जो विभिन्न स्थान में बड़ धरणर आतंकी हमला है से कहते आउ गोटे पटे आरंभ हो राजनीति जहाँ कि सूचना रही कांग्रेस जे रही लीडर जे रही नेता जे रही सुशील कुमार शिंदे तांकर कहवा कथा हेउछि जे सर्जिकल स्ट्राइक को जो एते प्रचार करागला सर्जिकल स्ट्राइक रो प्रभाव रे एई घटना मान घटुछि जहाँ कांग्रेस नेतांकर कहवा कथा। तो एहा को नै वर्तमान समय रे राजनीति आरंभ हो गलानी। तेज आउ गोटे पटे जमीक पश्चिमबंग मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी से दुख प्रकाश कर घटना नहीं से ट्वीट कर समवेदना जणाइछंती।